Hello kids, welcome to grade 9 history class and we are discussing the chapter 1 which is the French Revolution chapter and today's session is session 5. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर और आज का सेशन है सेशन 5. So let's start with it. Before starting the session 5, let's see what we have discussed. Before starting the session 5, let's recap what we have discussed in session 4. We discussed in the chapter, so we discussed in the session 4 that जो representative थे from the third estate, they viewed themselves as the representative of the whole France. So what they did, they walked out of the assembly and they declared themselves as the National Assembly, and they swore not to disperse until they had drafted a constitution for the France because they wanted to end the powers of the monarchy. Yes. Now, do you remember बच्चों where they were making that constitution or drafting the constitution? Yes, at the Palace of Versailles. So वो हम लोगों ने देखा है कि Louis XVI and his queen they used to live there at the Palace of Versailles. तो जो people थे from the third estate जिन्होंने अपने आप को National Assembly declare कर दिया था, they were drafting the constitution. Now when they were drafting the constitution, rest of the France was going through turmoil. And why the France was going through turmoil? वो हमने देखा session 4 में. Because of the severe winter. Now because of the severe winter, what happened? The price of the bread rose. Now whenever the price of the bread rose, what used to happen in France? वहाँ पे एक जो बेसिक लाइवलीहुड है वो जो लोग थे वो मीट नहीं कर पाते थे because bread was their staple diet. Now because of all this, a lot of revolution happened. People were revolting everywhere in the France, and looking at all of this, what King Louis XVI did, what he did that he acknowledged the National Assembly. So in the end जो National Assembly था उसको recognition मिल गया. Now let's see what happens in the session 5. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. So जो National Assembly थी उन्होंने जो draft था Constitution का what they were making, they finished it in the 1791 में. Its main object was to limit the powers of the monarch. तो ये उनका जो main object था वो ये था कि वो जो monarch की powers हैं वो उनको किसी भी तरह limit करें, क्योंकि monarch की powers से उनको बहुत सारी problems हो रही थी. वो जो feudal privileges हैं वो सब monarch की power से ही थी. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions. तो जो ये पावर्स थी नाउ, जो पहले जो ये था कि मोनार्क के पास जो सारी पावर्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड रहती थी, पर अब क्या हुआ, इससे क्या होगा कि जो पावर्स है सारी वो सेपरेट हो जाएंगी और वो असाइन कर दी जाएंगी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को. और आप लोगों को याद है बच्चों कि इसका प्रपोजल किसने दिया था? याद करिए, इसका प्रपोजल दिया था जो फिलोसोफर थे जॉन जैक्स रूसो, उन्होंने इसका प्रपोजल दिया था. तो उन्होंने क्या बोला कि 3 डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसमें डिवाइड कर दें. एंड व्हाट वर दोस 3 इंस्टीट्यूशन? द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. नाउ लेट्स सी कि इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. नाउ यहाँ पे वी विल सी कि देयर वर सम पैसिव सिटीजन्स. पैसिव सिटीजन्स कौन थे? नो वोटिंग राइट्स. तो पैसिव सिटीजन्स के पास कोई भी जो वोटिंग राइट्स थे वो नहीं थे. अबाउट 3 मिलियन men, women, children and youth below 25. So जो youth हैं below 25, men, women, उनको ये जो थे वो वोटिंग राइट्स नहीं थे and they were all passive citizens. Active citizens, let's see who were the active citizens. Entitled to vote, about 4 million of a population of 28 million. So 28 million की population में only 4 million ऐसे citizens थे जो कि active citizens थे, और active citizens को ही जो voting का एक right था वो केवल उन्हीं को था. तो जो active citizens थे वो vote करते थे और उनके vote से then they used to elect the electors, और electors जो होते थे वो होते थे 50,000 men. जो इलेक्टर्स हैं देन दे यूज टू इलेक्ट द नेशनल असेंबली. तो वो लोग जो नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे उसमें कितने मेंबर्स होते थे? देयर वर 745 मेंबर्स इन नेशनल असेंबली. नाउ जो एग्जीक्यूटिव हैं उनमें थे
द किंग एंड द मिनिस्टर्स, तो वो they both used to come under the executive and the National Assembly used to come under the legislature. Now we have the judiciary. Judiciary में जो active citizens थे they used to vote for the judge. तो this is how the system was supposed to work. The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का, उसमें जो पावर्स दी गई थी लॉज बनाने की वो नेशनल असेंबली को दी गई थी, और जो नेशनल असेंबली थी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी. इनडायरेक्टली कैसे इलेक्ट होती थी? बिकॉज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली. तो जो सिटीजन्स थे, वी हैव सीन इन द डायग्राम, जो सिटीजन्स थे, जो एक्टिव सिटीजन्स थे, दे यूज टू वोट फॉर द ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, और जो इलेक्टर्स थे दे यूज टू इन टर्न चूज द असेंबली. दिस इज हाउ द असेंबली वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. Only men above 25 years of age who pay taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens. That is, they were entitled to vote. So we have seen in that diagram कि they were passive citizens and then they were active citizens. तो active citizens कितने थे, याद है बच्चों? Yes, 4 million out of 28 million. तो let's see कि कौन active citizens थे. तो only men above 25 years of age. So जो भी men थे जो 25 और उसकी एज के ऊपर थे, who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage. तो उन्होंने जो taxes पे करते थे, it has to be जो एटलीस्ट 3 डेज जो लेबर का वेज होता है उसके इक्वली अगर उन्होंने टैक्सेस पे करें, एंड देन दे हैव टू बी 25 इयर्स ऑफ एज अबव दैट, उनको ही जो स्टेटस है एक्टिव सिटीजन्स का वो दिया जाता था, एंड जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे वो ही एंटाइटल्ड टू वोट होते थे. सो दिस इज़ वाई वी सॉ कि जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स थे, वो इतने कम क्यों थे? बिकॉज जो 28 मिलियन में हम देख रहे हैं, ओनली 4 मिलियन वर द एक्टिव सिटीजन्स हु वर गिवन द राइट टू वोट. टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाइएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स. तो जो इलेक्टर के लिए क्वालिफाई करते थे लोग, एंड ऑल्सो मेंबर ऑफ असेंबली बनने के लिए जो अल्टीमेटली मेंबर ऑफ असेंबली बनते थे, उसके लिए जो लोग होते थे उनको हाईएस्ट टैक्स पेयर होना पड़ता था. वो जो एक ब्रैकेट था हाईएस्ट टैक्स पेयर्स का, उसमें बिलोंग करना पड़ता था. देन ओनली दे कैन बी इन द मेंबर ऑफ द असेंबली. The Constitution began with a declaration of the rights of men and citizen. जो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो स्टार्ट हुआ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स. तो जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स जो होने चाहिए, उससे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शुरू हुआ. तो उसमें राइट्स क्या क्या थे, लेट्स सी. राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो ये सब जो है वो बेसिक राइट्स हैं, नेचुरल लॉज हैं, उनको पहले रखा गया था. तो राइट सच एज अ राइट टू लाइफ, तो जो एक आदमी की ज़िंदगी का अपने पर अधिकार होता है, दैट इज़ राइट टू लाइफ. फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर लेट्स से कुछ भी गलत हो रहा है या इलेक्शन हो रहे हैं, तो एटलीस्ट पीपल हैव द राइट टू स्पीच. वो कुछ भी बोल सकते हैं, स्पीचेस दे सकते हैं, दैट इज़ द राइट टू स्पीच, कि आप कहीं भी कुछ भी बोल तो सकते हैं कम से कम. फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना जो एक ओपिनियन है वो रख सकते हैं, किसी भी आप एडवाइजरी कमेटी में है या कहीं भी है, तो आपको एक फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, तभी आप जो अगर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं. इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो जो भी फ्रेंच नेशन के लोग हैं उनके लिए जो लॉ है वो इक्वल हो, दिस विल बी द इक्वालिटी बिफोर लॉ. ये जो राइट्स थे वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू इससे किया गया. These were established as natural and inalienable rights. तो ये जो सारे थे राइट, उनको एक नेचुरल लॉज की तरह एस्टैब्लिश किया गया. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away.
इसका मतलब ये है कि जो ये सारे नेचुरल लॉज हैं वो हर जो ह्यूमन बीइंग है वहाँ का उसको बाय बर्थ मिलेंगे एंड ये लिए नहीं जा सकते। तो एवरीबडी विल हैव राइट टू दोज, जो भी ये नेचुरल लॉज हैं उन पे सबका अधिकार होगा। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। तो जो स्टेट है उसका ये एक ड्यूटी थी कि वो जितने भी सिटीजन्स हैं उनके जो नेचुरल लॉज हैं, जो नेचुरल राइट्स दिए हैं, उनको प्रोटेक्ट करें। So this is what we have seen in, so this is what we have discussed in the session 5 ki how the power was, so this is what we have seen in the, so this is what we have discussed in the session 5 ki how the power was divided into 3 parts and how France became a constitutional monarchy। तो जो लुई 16 ने नेशनल असेंबली को जो एक रिकॉग्निशन दिया, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, देन पीपल वर गिवन द नेचुरल राइट्स जो हैं वो उनको दिए, और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो मैन एंड सिटीजन हैं उनको जो राइट्स हैं नेचुरल लॉज जो कि एक बाय बर्थ मिलेंगे और उन राइट्स को नोबडी कैन टेक इट अवे, एंड ऑल्सो इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेक श्योर कि जो लोगों की ये नेचुरल जो राइट्स हैं उनको मिले और जो उनके राइट्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करें। और जो स्टेट है उसका ये भी काम था कि वो सारे जो लोग हैं सिटीजन्स हैं उनके सारे जो राइट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर जो जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव उसमें पावर्स बांटी थी उनका भी पूरा ध्यान रखा जाए, एंड ऑल्सो पीपल ऑफ द नेशनल जो असेंबली था उसको देवर जो उसमें मेंबर्स थे दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स, एंड वी सॉ कि जो एक्टिव सिटीजन्स थे दे वर 4 million out of 28 million. So this is all we have discussed in the session 5. Thank you.